Okay, so now, so this is the name of third chapter, theory-based accounting, students. So right now I had sent a PDF of this chapter in your group. So today we are going to study theory-based accounting. But if we are not, you all are knowing that before recording anything, we must understand the meaning, concepts, methods, then we can do this. So this is what theory-based accounting. This is very, very important. So first of all, introduction will say about the previous chapter. It is saying we have studied that accounting is concerned with recording, classifying, and summarizing of financial transactions and events and interpreting the result thereof. So as I already have said, introduction means you will do study about the previous chapter. First of all, so the basic objective of accounting is to provide information about operation and financial performance of a firm to its various users such as shareholders, debenture holders, bankers, financial institutions, creditors, tax authorities, researchers, employees, etc. Thus, it helps them in taking useful decision. And for making the accounting information useful and meaningful to its users, it is necessary that each information must be reliable and comparable. The comparability of the accounting information is required both for making inter-firm comparison, means comparison with similar firm, and for making intra-firm comparison, that is inter-period comparison of the same firm with the previous years. This is possible only when the financial statements are based on consistent accounting policies. So when it is possible, when financial statements are based on consistent means uniform, एक जैसा, consistent accounting policies every year and principles and practices. So if we are doing all the record on the basis of consistency accounting policies, means that every year we are using same policy, principles and practices. Thus, accounting principles, concepts and conventions have been formulated and these are commonly known as generally accepted accounting principles. This is known as GAAP. So what is GAAP? So GAAP is generally accepted accounting principles, means all the accountant are agreed in same concept. So this is what GAAP, generally accepted accounting principles. मतलब मान लो कि एक कंट्री में जितनी भी अकाउंटेंट हैं, जो बॉडीज हैं, अकाउंटिंग बॉडीज, प्रोफेशनल बॉडीज, दे ऑल आर एग्री ऑन द सम सर्टेन रूल्स, प्रिंसिपल, मेथड, कन्वेंशंस. सभी लोग सेम मेथड यूज कर रहा है, सेम कॉन्सेप्ट, सभी लोग की जो एजम्पशंस हैं वो कॉमन है, तो उसको कहेंगे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. मतलब सब लोग एक जैसा ही यूज कर रहा है. गैप्स आर दस बेसिक रूल. गैप्स होता है क्या, इसके अंदर किस चीज पे एग्रीड होते हैं? ऑन बेसिक रूल्स विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स एंड दे आर द थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग. ओके, तो ये कुछ रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं, कन्वेंशंस एंड कॉन्सेप्ट्स हैं. इन सब पर ये लोग एकमत होते हैं. और जब सभी अकाउंटेंट किसी एक चीज पर अपना कंसेंट कॉमनली दे रहे हैं तो उसे कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. वही प्रिंसिपल्स बन जाता है जिसको सभी अकाउंटेंट ने जनरली एक्सेप्ट किया है कि हाँ ये ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है सब लोग पढ़ेंगे, अगर आगे होगा, सिलेबस से हट भी किया था कुछ. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैव बीन इशूड. कौन इशूड करता है? स्टैंडर्ड मींस एक बेस हो गया यहाँ पर, जिसके बेसिस पे हम लोग बुक्स में बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जिसके बेस पे. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैव बीन इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. दिस इज नोन एज ICAI.
फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, मतलब ये जितनी भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो एग्रीड होते हैं, इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है वो इसे इशू कौन करता है? से आईसीआई इशू करता है, प्रोफेशनल बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो टाइम टू टाइम इशू करता रहता है अमेंडमेंट करते हुए, ताकि अकाउंटिंग को और अच्छे तरीके से रिकॉर्ड किया जा सके. So for transactions, sorry, for the standardization of accounting policies to be adopted under specific circumstances, the gap is, gap means वही होता है generally accepted accounting principle, is used to describe the rules developed for the preparation of financial statement, and these accounting principles are called by various names. इसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को जो गैप है कई नामों से जाना जाता है. क्या कह रहा है? सच एज कॉन्सेप्ट्स, ओके, कन्वेंशंस, कॉन्सेप्ट मींस जो गाइडलाइंस प्रिंसिपल्स जो बनाए जाते हैं, और कन्वेंशंस यानी एक इंटरनल इंट्यूशन के आधार पे हम लोग बनाते हैं, दैट इज व्हाट कन्वेंशन. एंड एक्सियोम्स, पोस्टुलेट्स, principles, modifying principles, etc. So these are the other names which we use for the gap, and the conceptual framework developed by gap. तो जो conceptual framework है ये डेवलप किसके थ्रू किया जाता है? गैप, यानी जब एक प्रोफेशनल बॉडी एक चीज पर सभी लोग एग्री होते हैं, कॉमन कंसेंट देते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं गैप. Okay, are referred to as the theory based accounting. तो क्लियर है यहाँ तक? ये इंट्रोडक्शन था. हम लोग को क्यों पढ़ना चाहिए थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग? इट इज सेइंग दैट कि whatever we do the record of the business transaction and events, it should be on the basis of some standard and principles, guideline and concepts, so that everyone can understand. So for to understand everyone, this is necessary, we need to follow the generally accepted accounting principles, so that everyone can understand why this has been debited, why this has been credited, and why this particular item has been shown in this account and in that account. Everyone can understand by this. So now we are going to meaning and nature of accounting principles. Okay, तो हियर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की मीनिंग AICPA जो है वो उसके अकॉर्डिंग अमेरिकन जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड जो अकाउंटेंट का है, आप देखिए यहाँ पे, तो कह रहा है द अकाउंटिंग प्रोफेशंस, द अकाउंटिंग प्रोफेशंस हैज डेवलप्ड सर्टेन रूल. प्रोफेशन कौन है? ICAI बॉडी. यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज में अपना अलग अलग है. हमारे यहाँ इंडियन जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, ICAI, ये प्रोफेशनल बॉडी है. सो द अकाउंटिंग प्रोफेशन हैज डेवलप्ड सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल्स टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी. क्यों इशू करते हैं टाइम टू टाइम रूल्स प्रिंसिपल्स? टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, कि एक कंट्री में जितने भी अकाउंटेंट हैं वो सभी जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करे वो उसके लिए सेम मेथड हो, सेम टेक्निक हो, एंड कंसिस्टेंसी इन रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस. सो समझ में आ रहा है कि प्रिंसिपल्स ऑफ क्या होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैज बीन डेवलप्ड. क्या होता है प्रिंसिपल्स? क्या होता है? टू मेंटेन. व्हाई भी देखो, सबसे सिंपल चीज प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है. एक एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ. जैसे आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे, साइंस केमिस्ट्री के लिए लैब में जाते होंगे, तो कौन सा केमिकल, कौन सा सॉल्ट कितने टेम्परेचर पर उसे हीट करना है, डिजोल्व होगा और उससे क्या रिजल्ट आएगा, तो सभी स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं. तो होता क्या है कि सबका जब रिजल्ट कॉमन आता है और बार बार रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करेंगे तो फिर वही उनका प्रिंसिपल्स हो जाता है. उसको नोट डाउन कर लेते हैं कि ऐसा करने पे ये रिजल्ट आएगा. ठीक उसी तरह अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी अपना एक गाइडलाइन है. ठीक है, कि अगर कोई चीज हम ऐसा होगा तो उसका रिकॉर्ड इस तरीके से करेंगे, उसका रिजल्ट ये होगा. तो दिस इज व्हाट दी, ये कौन इशू करता है? प्रोफेशनल बॉडीज. हमारे इंडिया में ICAI है, बट हम लोग डेफिनेशन अभी पढ़ेंगे बाद में दूसरे लोगों का. So the accounting profession has developed certain rules or principles to maintain uniformity.
and consistency in the recording of transactions. तो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने पे यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी, यूनिफॉर्मिटी मीन्स एक समान, सभी लोग सभी चीज को एक ही कॉन्सेप्ट में उसी सेंस में समझे जिस सेंस में लिखा जा रहा है। कंसिस्टेंसी का मतलब कि जो मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं रिकॉर्डिंग में वो एवरी ईयर सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हर साल अपने मन से इंट्यूशन के आधार पर हर साल लगाएं, तो ऐसा अगर होगा तो कोई नहीं समझ पाएगा, वो अंडरस्टैंडेबल नहीं रह पाएगा, कंपेरेबल नहीं रह पाएगा। सो इसीलिए कहा जा रहा है कि इट इज डेवलप सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल्स। क्यों बनाया जाता है? टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी एंड रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। तो AICPA ने क्या कहा है, देखिए, द टर्म प्रिंसिपल्स हैज बीन डिफाइंड एज अ जनरल लॉ, जिस पे सभी अकाउंटेंट एग्री होते हैं, ठीक है। तो जनरल लॉ और रूल adopted or professed as a guide to action, as a guide to action। मतलब ये क्या करता है प्रिंसिपल्स, एक जनरल लॉ है, रूल जो अडॉप्ट किया गया है, या एक प्रोफेस्ड एज अ गाइड के रूप में वर्क करता है टू एक्शन मींस टू रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, अ सेटल्ड ग्राउंड और बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिस। तो ये AICPA ने थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज में बोला है कि है क्या, एक जनरल लॉ है, रूल है और एक गाइड है टू एक्शन एंड अ सेटल्ड ग्राउंडिंग। ग्राउंड पहले से बनाया गया है जिसके आधार पे और बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिस, जिसके बेस पे हम लोग सारा अकाउंटिंग या बिजनेस ट्रांजैक्शंस का हम लोग लेखा जोखा करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ओके, सो नाउ फर्दर it is saying that thus accounting principles, better called as generally accepted accounting principles, refers to rules or guidelines adopted for recording of business transactions so as to bring uniformity in the preparation and presentation of financial statements. These principles are based on ethics, so they are value-based principles or recognized all over the world. So, after all above discussion, we can give this definition, this meaning of GAAP or accounting principles. कि होता है क्या है, accounting principles or GAAP refers to the rules or guidelines. ये rules या guidelines होता है adopted for recording of business transactions so as to, why? So as to bring uniformity, ताकि uniformity in the presentation and preparation of the financial statement. Okay, so now you can note it down, you can take a screenshot of this. And further, the accounting profession has therefore evolved and developed certain principles. तो अकाउंटिंग प्रोफेशन ने क्या किया है, इस तरीके से बहुत सारे कुछ प्रिंसिपल्स डेवलप किए हैं सो एज टू ब्रिंग आउट यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। ये बात बार बार रिपीट हो रहा है, इससे आप लोग को क्लियर होना चाहिए कि जो भी प्रिंसिपल्स होता है वो गाइडलाइंस होता है, क्यों बनाया जाता है, ताकि सभी लोग सेम गाइडलाइन सेम रूल को फॉलो करें और यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सके, ठीक है। These accounting principles are called by various names such as concepts, conventions, axioms means खुद से प्रैक्टिस करके सिद्ध किया हुआ है, assumptions, postulates, modifying principles, etc. So क्या होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जनरल गाइडलाइन which we use in making business transactions. Okay, तो ये सब कुछ मान्यताएं होती हैं, कुछ खुद से प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंट किया हुआ होता है, कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं, कुछ एक्सियोम्स हैं, कन्वेंशंस हैं, ठीक है। ये सब सभी लोग सेम टर्म्स और कंडीशन पे एग्री होता है कि इसका मतलब ये होना चाहिए, जैसे हम लोग कन्वेंशन कहते हैं। अब नेचर और फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। The accounting principles have been developed over a long period of time. Therefore, it cannot be developed in overnight because ऐसे नहीं बना दिया जाता।
और ये एक साइंस है, साइंस में जैसे चेंजेस होते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, नए नए इन्वेंशंस होते हैं, लाइक दैट इन अकाउंटिंग में भी होता है। इसका भी अपना प्रोफेशनल बॉडी है जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं। एवरी टाइम दे फाइंड अ न्यू वे टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस इन अ साइंटिफिक वे, मोर साइंटिफिक वे. So the accounting principles have been developed over a long period of time on the basis of past experience, customs, statements of individuals, professional bodies like Institute of Chartered Accountant of India, American Institute of Certified Public Accountant, AICPA, International Accounting Standard Committee, IASC, etc. So these are the bodies, professional bodies, which develop time to time different kinds of statement, principles, guidelines, conventions, concepts. Okay. So, however, these principles are not static. ये जो principles हमारे सामने आते हैं, guideline आते हैं, these are not static in nature. ये fix नहीं होता. It can be changed if anyone has developed a better way. So, how these principles are not static in nature and are bound to be influenced by the change in legal, social, economic environment, and as per need of users of the financial information and professional bodies. So the nature of accounting principles becomes more clear from the following point. तो ऊपर देखा कि ये सारी चीजें जो नेचर है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, कन्वेंशंस की, ये टाइम टू टाइम जो इंडिविजुअल्स और सॉरी इंस्टीट्यूशंस, जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं अकाउंटिंग के, हमारे कंट्री में, आउटसाइड कंट्री में, प्रोफेशनल बॉडीज के टाइम टू टाइम डेवलप करते रहते हैं. ठीक है. These are not in static. These are flexible, changeable. So now it will be more clear from the following points. Let us study. Accounting principles are not static. पहला फीचर हो गया जैसा कि भी पढ़ा. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अगर स्टैटिक होता तो फिर इसको हमें रिसर्च करने की बार बार क्या जरूरत है, नए नए रूल्स रेगुलेशंस बनाने की कोई जरूरत नहीं. नए रूल्स रेगुलेशन हर समय चेंज होता है. अभी इस साल क्लास 12 में फिर से चेंज हो गया कि एक चैप्टर है डिवेंचर, उसके जो प्रोविजंस है उसमें चेंजेस हो गए. व्हाई? सो दे आर नॉट स्टैटिक बिकॉज they are changing and they research in the best way of preparing the financial statement. So the accounting principles have been developed over a long period of time on the basis of past experience, custom, statement, and professional bodies and regulations of government agencies. कुछ तो गवर्नमेंट एजेंसीज के भी रेगुलेशंस होते हैं, उनको भी फॉलो करना होता है. These accounting principles are not static in nature and are constantly influenced by the changes in legal. जब जैसे जीएसटी वगैरह अब आ गया, पहले वैट था, ठीक है, वैट चार्ज करते थे, सेल टैक्स चार्ज करते थे, तमाम तरीके के टैक्सेस होते थे, लेकिन आज सारे टैक्सेस किसमें कन्वर्ट हो गए? जीएसटी में. सो चेंजेस लीगल, इसकी वजह से हमारे अकाउंट में चेंजेस हो गए. ऐसा नहीं कि अभी भी हम वही फॉलो करते हैं. तो सोशल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट and as per needs of the users of the accounting information. ठीक है. तो there are so many changes in the accounting. It is not static. Second, accounting principles are man-made. ये machine made नहीं होता. These are man-made क्योंकि एक जो human body जो accountant होता है, एक किसी प्रोफेशनल बॉडी का पर्सन जब रिसर्च कर रहा होता है और अपने रिसर्च करने के बाद जो बेस्ट वे होता है अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उसको प्रेजेंट करता है. ठीक है. तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, सो दे आर नॉट एज एग्जैक्ट एज प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल साइंस. तो साइंस है, नो डाउट, अकाउंट इज ए साइंस, बट इट इज नॉट just like natural, like physics or chemistry. These are human science. Okay. So they are not exact as principles of natural science which can be tested in laboratory. Further, they are subject to changes as per requirements of the user. और ये users के requirement के आधार पर भी change होता रहता है. ठीक है. So next, accounting principles are generally accepted. जैसा कि हमने बताया कि accounting principles ऐसा नहीं है कि एक accountant इसे use कर रहा है दूसरा कहेगा नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं कह सकता. There are so many principles. Out of that, anyone they can use, but they will use the same policy. Means they will maintain the consistency, but all principles are correct.
सो यहाँ कह रहा है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड, सभी अकाउंटेंट मिलकर इस पर कंसेंट देते हैं. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग, दे एक्ट एज द गाइड for accounting, and these are generally accepted by accounting professionals of the world because they meet the following criteria. Okay, now first, objectivity. क्या क्या फॉलोइंग क्राइटेरिया मीट करते हैं? ऑब्जेक्टिविटी, देखो जो भी प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस बनाए जाते हैं तो ध्यान में रखते हुए कि हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है कि नहीं इससे. द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्जेक्टिव if it is supported by documentary evidence and is verifiable. The accounting information should also be free from personal bias. Already I have taught in first chapter. The accounting principle, while the professional body may evolve or creates the new principles or guidelines, so he will keep in mind कि objectivity would be fulfilled or not. So principle is to be created on this basis. First, second, relevance. So whatever principles are making by the general agreement of all the accountant, it should be relevant. So the accounting information is relevant only when it is useful to various end users of the accounting services. तो relevancy का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि सभी लोग के लिए यह relevant होगा या नहीं. फिर visibility. So the accounting principles are visible, keeping in view the complexity and cost involved in the application by accounting professionals. ये भी ध्यान रखना रहा है कि ये फिजिबल है कि नहीं मेथड जो प्रिंसिपल्स बनाया जा रहा है सभी लोगों के लिए. ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फिजिबल, कीपिंग इन व्यू द कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन इट्स एप्लीकेशन. जो भी प्रिंसिपल्स बनाए जा रहे हैं उसके एप्लीकेशन में उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए कि ज्यादा ना हो, so that everyone can apply this by the accounting professional. Right? So आपका फीचर फिनिश हो गया और कोई, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले एक बार हम डिस्कस कर ले किसी से. तो आप सभी लोग में से बताइए कि फीचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या समझ में आ रहा है? कोई बताइए स्टूडेंट्स. चेतन, सर एक बार फिर समझा. किस चीज को बताओ, कौन सा टॉपिक, कौन सा टॉपिक चेतन? चेतन, सर रेलेवेंस. रिलेवेंस मीन्स क्या होता है पहले ये बताओ. मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था. रिलेवेंस मीन्स जो भी गाइडलाइन प्रिंसिपल्स बनाया गया है वो रिलेवेंट होना चाहिए. ऐसा नहीं कि इरिलेवेंट होना चाहिए. अगर कोई इंफॉर्मेशन तुम यूज कर रहे हो वो तुम्हारे बिजनेस में रिलेवेंट है तभी तो यूज करोगे, और अगर तुम्हारे बिजनेस से मतलब ही नहीं है वो तो इरिलेवेंट होगा. तो जो भी प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस बनाए जाते हैं इट शुड बी कीप इन माइंड कि इट शुड फुलफिल द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द बिजनेस और मेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इट शुड बी रिलेवेंस. ठीक है, सो दैट कि it can be used by the end users. And feasibility means it should be feasible in apply the rules and regulation in our books of account. Okay, next, need and types. अब यहाँ से हम लोग को थोड़ा थोड़ा अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे मीनिंग, फीचर्स, नेचर. अब नीड एंड टाइप्स, इसकी जरूरत क्या होती है? व्हाई वी नीड द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर देयर. सो पहले हम लोग नीड पढ़ लें, फिर टाइप्स तो पढ़ते रहेंगे. 10 minutes are left. So here the accounting information is meaningful. That is saying accounting information is meaningful and useful to its user when, कब ये होगा meaningful और useful? When such information is reliable and comparable. जब तक वो reliable और comparable नहीं होगा तब तक वो आपका helpful नहीं होगा, meaningful नहीं होगा. So there should be reliable and comparable. So reliability means
that information is dependable and free from personal business. ठीक है, whereas comparativity means that financial statement are comparable both with the similar firm and with its period, means intra-firm comparison. So यहाँ साफ साफ बता रहा है कि पहली चीज की रिलायबिलिटी होनी चाहिए. रिलायबिलिटी का मतलब कि ये फ्री होना चाहिए पर्सनल बिजनेस और पर्सनल बायसनेस. बायसनेस यानी पक्षपात नहीं होना चाहिए, अपना पर्सनल बेनिफिट के आधार पर नहीं बनाना चाहिए, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस. और जबकि कंपैरेबिलिटी क्या बताता है कि इट शुड बी दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंपेरेबल बोथ. कैसे बोथ का मतलब यहाँ पर विद सिमिलर फर्म. अपने जैसे तुम्हारी फर्म है, मार्केट में सेम फर्म दूसरी किसी का है, तो आपस में उस फर्म से भी कंपैरिजन कर सको एंड विद इट्स पीरियड, और इंट्रा फर्म कंपैरिजन भी कर सको. ठीक है. सो द अकाउंट इंट्रा फर्म का मतलब अपने खुद के फर्म से विद इट्स पीरियड, मतलब कि हम पिछले साल से और इस साल का आपस में ही अपने ही फर्म का कंपैरिजन कर सके, और करेंट ईयर में हम दूसरे फर्म से और अपने फर्म का कंपैरिजन कर सके. तो दोनों तरीके से होना चाहिए. The accounting principles are thus needed to make the financial statement in some standardized form. Accounting principles क्यों जरूरत है? जरूरत इसलिए है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सम स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में बन सके, so that they serve the end users of financial statement in a better way. ऐसा नहीं कि सब अपने मनमानी तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, कोई कुछ भी दिखा देगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा. तो देयर शुड बी अ स्टैंडर्ड, a base, method, principle, rule, regulations, concepts which are to be followed by each and every firm. Okay, and it should be consistent, means every year same policy should be followed. So this is what the need. अब आते हैं हम लोग टाइप्स पे. So broadly speaking, accounting principles are classified into two categories. So पहले क्या है two categories? First categories are accounting concepts और assumptions, जिसको concepts या assumptions यानी मान्यताएं. और सेकेंड है accounting principles यानी गाइडलाइन. तो जो concepts और assumptions हैं, ये conventions और concept और assumptions आते हैं, हम past experience और intuition के आधार पे बनाते हैं, past experience के आधार पे. और principles हमारे जो repeated experiment के आधार पे बनते हैं. ठीक है. तो दो पार्ट्स में बांटा गया है. अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कितने हैं और एजम्पशन कितने. लोग सबको प्रिंसिपल्स ही कहते हैं या सबको कॉन्सेप्ट्स कहते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से एक्सप्लेन किया गया है. कॉन्सेप्ट्स को अलग किया गया है और प्रिंसिपल्स को अलग किया गया है. टोटल कॉन्सेप्ट्स कितने दिख रहे हैं यहाँ पर आपको? 3, 1, 2 and 3. पहला है गोइंग कंसर्न एजम्पशंस, सेकेंड consistency assumptions, and third accrual assumptions. Okay, so one by one let us study what is going concern concept. Going का मतलब समझ रहे हो, हिंदी में कहेंगे कि जा रहा है. concern का मतलब होता है यहाँ पर बिजनेस, और assumptions means मान्यताएं. तो इसका मतलब क्या हुआ? तो गोइंग कंसर्न assumptions हम अपने बिजनेस में जो रिकॉर्ड करते हैं फिक्स्ड एसेट्स का. ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स का रिकॉर्ड हम किस आधार पे करते हैं? गोइंग कंसर्न. इसको हम लोग, आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में एक्सपेंडिचर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप क्या करते हो कि हम सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और बाकी बचा हुआ एसेट्स नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ट्रांसफर कर देते हैं. लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो उसी ईयर में एग्जॉस्ट हो जाता है. ठीक है. तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बताता है? तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बताता है कि हम लोग फिक्स्ड एसेट्स को इसी एजम्पशंस के बेस पर रिकॉर्ड करते हैं. इसका मतलब कि हम ये मानते हैं कि हमारा बिजनेस अभी बंद नहीं होने जा रहा है, हमारा बिजनेस आगे फ्यूचर में भी चलता रहेगा, और इसी वजह से हम फिक्स्ड एसेट्स को एक्सपेंसेस ना मानकर कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स की कैटेगरी में आता है और उसको बैलेंस शीट के एसेट्स में हर साल ट्रांसफर करते हैं. तो यहाँ देखिए, पढ़िए. The concept of going concern assumes that business will continue its operation for a long period of time. मतलब बिजनेस चलता रहेगा long period of time,
and will not be sold or liquidated in near future. तो ये assume किया जाता है कि हमारा बिजनेस अभी चलता रहेगा, ये आगे अगले साल या इसी समय बंद नहीं होने जा रहा है. This is why it is also called as assumptions of continuity. So going concern assumptions को हम लोग assumptions of continuity भी कहते हैं. So on the basis of this concept, ध्यान से समझो जो मैं एग्जांपल ले रहा था. On the basis of this concept, fixed assets are recorded at their cost price less estimated depreciation based on useful life of that assets. हम मानते हैं कि एक मशीन खरीदा जिसकी लाइफ टाइम 10 ईयर है. सो अगर 1 लाख रुपए की मशीन खरीदा और उसकी लाइफ टाइम 10 ईयर है तो मतलब 10 ईयर में वो खत्म हो जाएगा. तो करते क्या है कि 10 से डिवाइड कर दो तो पर ईयर का लॉस जो आ रहा है 10,000, वो लॉस डेप्रिसिएशन कहलाएगा. तो हर साल 10,000 जो है हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं, लेकिन जो बचा हुआ पोर्शन होता है उसको एसेट्स में दिखाते हैं. क्यों? ये मान करके आवर बिजनेस इज नॉट गोइंग टू बी क्लोज, क्योंकि आगे बिजनेस चलता रहेगा और इस मशीन को हम यूज करते रहेंगे इसके लाइफ टाइम तक. तो एस्टिमेटेड carried appreciation based on useful life of that assets. For example, machine is purchased for ₹50,000 having estimated lifespan of 5 years. So after expiry of 1 year, it assumes that machine will last for 5 years. कह रहा है कि ये 5 साल इसकी लाइफ टाइम था और एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर के बाद इट इज अज्यूम दैट मशीन विल लास्ट फॉर 5 ईयर, 5 साल खत्म हो जाएगा. सो ईयरली बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम इट्स यूज 50,000 minus 5 will be 10,000. ओके, सो 10,000 आपका पर ईयर क्या हो रहा है, पर एनम लॉस हो रहा है. 10,000 का डेप्रिसिएशन विच चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द ईयर एंड द मशीनरी विल बी शोन at rupees 40,000 means 50,000 minus 10,000 जो डेप्रिसिएशन था, that is unexpired cost. अभी 40,000 का बचा है तो इसको किस बेसिस पे बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं. इस साल क्यों नहीं एक्सपेंसेस माने, इसलिए माने कि अभी आगे हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न एजम्पशन पे चलता जाएगा, तो इस एसेट्स को भी हम आगे यूज करते जाएंगे. अगर ऐसा नहीं होता गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट या एजम्पशंस, तो हम ये पूरा 50,000 रुपया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि इसको हम आगे यूज करेंगे. तो ये मान्यता है द अनएक्सपायर्ड कॉस्ट ऑफ द मशीन दैट इज 40,000 इफ द assumptions of continuity is not there. मान लो कि अगर कंटिन्यूटी का assumption नहीं होता, the whole cost of machine 50,000 would have been charged in the years of its purchase. अगर ऐसा नहीं होता तो हम जिस साल खरीदे उसी साल इसको एक्सपेंसेस में दिखा देते, बट ऐसा नहीं कर रहे. So it is pertinent to note that we exhibit fixed assets at their cost price without taking reference to their market price. ये ध्यान रखना है कि मार्केट प्राइस से हमको नहीं मतलब है, हमने जितने का खरीदा और कितना डेप्रिसिएशन घटाया, बस उसको घटाने के बाद जो आता है उस पे दिखाते हैं. So the market price of the fixed assets is irrelevant as it has not been purchased for selling purpose. क्योंकि मार्केट प्राइस तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि हम सेलिंग पर्पस के लिए तो खरीदे नहीं है. We have purchased these assets फॉर ऑपरेशन पर्पस, और हमने मशीन खरीदा है अपने प्रोडक्शन के लिए, न कि सेल के लिए. सो assumptions of continuity of business allows us to charge a part of assets which has been consumed in the period of during operation. तो हमने जितना दिन यूज किया, जितना उसको यूज करने से डेप्रिसिएट हुआ, सब उसको माइनस करेंगे और बाकी का एसेट्स. सो दैट्स इट. आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे.